ठीक है. So the neurovasculature structures of the gluteal and posterior regions of the thigh. Now, contents of this presentation will include the nerves. Acha, neurovasculature. What does neurovasculature mean? Neuro obviously means nerves. Vascular means anything that supplies blood, right? It's vascular. So vascular supplies कहाँ से आती हैं? Arterial supplies से आती हैं और कहाँ से आती हैं? Venous supplies से आती हैं. ठीक है? And at the same time, lymphatics is like a vessel, something that carries lymphatics, anything, right? So neurovascular आपसे जब भी पूछा जाता है, neurovascular में क्या क्या आएगा आपका? आपके neurovasculars में आते हैं arterial supply, venous supply, and lymphatics and nerves. Okay. So let's start with the nerves of the gluteal region. ठीक है, nerves of the gluteal region में क्या क्या आएंगी आपकी? सबसे पहले आएगा sacral plexus. You need to understand the lumbosacral plexus. आपको पढ़ाया गया होगा lumbosacral plexus. ठीक है ना, उसकी हम majority आपकी चीजें हम review करेंगे. ठीक है, we have the sacral plexus. Where is it formed? How is it formed? किस तरह बनता है? Sacral plexus is formed by the anterior fibers of the spinal nerves S2, S3, S4. ठीक है, S1, S2, S3, S4. Okay. It is joined by the spinal nerves L4 and L5 to form the lumbosacral trunk. ठीक है, जो sacral plexus है वो किससे बनता है? S2, S1, S2, S3, S4. ठीक है, and lumbar जो areas सब combine होता है वो कौन सा होता है? L4 and L5 to form the lumbosacral trunk. Several important nerves arise from the sacral plexus, supply the gluteal, and some pass lower to the perineum and the lower limb. Okay. ठीक है, अब आ जाते हैं इस पिक्चर पर. चलो, सबसे पहली चीज क्या पढ़ा है अभी हमने? sacral plexus. ठीक है, L4 to S4. ठीक है, ये रहा. ये देख रहे हो आप, लेबल भी होगा L1, L2, L3, L4. ठीक है, L4 का एक निकल रहा है यहाँ से and it's giving part. L5 का भी निकल रहा है and it's taking part. S1, S2, S3, and S4. All of this together, this whole plexus is called as the sacral plexus. ठीक है, अब हम ये आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है, sacral plexus हमने किसको किसको सप्लाई करता है? एक तो ये अवल gluteal region है आपका. ठीक है, we discuss the gluteal region is where iliac crest से greater trochanter, remember हमने ये डिस्कस किया था, and the ये tuberosity gluteal fold तक. ठीक है, ये पूरा gluteal region है आपका. ठीक है, ठीक है, इस सबको अप्लाई सप्लाई करेगा. ठीक है, एंड ये कहाँ तक जा रहा है? नीचे तक जा रहा है, तो आपके लोअर लिम्ब को कर रहा है, right? And some of the nerves, if you notice carefully, they turn inwards, right? This area is the perineum, right? ये pelvis होता है ऊपर वाला area. ठीक है, and this below part is the perineum. ठीक है, so where does the sacral plexus supply? It supplies the lumbar, the gluteal region, okay, the perineum, and the lower limb. Are we good? बात समझ में आ रही है? Class, good. ठीक है ना? All right, so now we will start from what major nerves that you need to study from the sacral plexus. ठीक है? Now, I want you to see this word colonial, या colonial, जिस तरह कहा जाता है. ठीक है ना? This word actually means cutaneous. Cutaneous का मतलब क्या होता है? Skin, right? तो ये जो skin, ये ऊपर superficial layer, cutaneous, that's what it means. Superficial, yes, skin, या cutaneous. ठीक है? So this colonial word means skin, या superficial layer. ठीक है? And it's specifically this word is used for the gluteal region. बात समझ में आ रही है? ठीक है? Good job. ठीक है? So what we do is, okay, we'll know superior colonial nerves, some of the superior skin of the ऊपर वाली है, ये कहाँ का जा रही है? iliac crest पे नजर आ रही है ना? नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही? iliac crest पे नजर आ रही है, iliac tubercles पे नजर आ रही है. फिर आते हैं middle cranial, ये किधर नजर आ रही है? Gluteal lines पर है कि नहीं? Right? और इसके देखते हैं क्या होता है, सुपीरियर मिडल होगा, तो एक सुपीरियर नाम दिया हुआ है तो मतलब इंफीरियर भी होना चाहिए. तो सुपीरियर क्लेनियल नर्व, मिडल क्लेनियल नर्व, एंड ये रहा सबसे नीचे इंफीरियर क्लेनियल नर्व. ओके, तो ये इंफीरियर क्लेनियल नर्व किधर होगा? नीचे की तरफ होगा. ठीक है, ये कौन सा? इसके tuberosity. डू यू सी इट? यहाँ पे नीचे नीचे आ रही है इंफीरियर क्लेनियल नर्व. इंफीरियर क्लेनियल नर्व इज, चलो मैं आगे जाकर बताती हूँ क्या क्या है. ठीक है, so the skin of the gluteal region is richly innervated by the superior, middle, and inferior cranial nerves. We've seen this. अभी दिखाया मैंने, है ना? The superficial nerves supply the skin over the iliac crest, है ना? हमने अभी देखा, अभी iliac crest पे supply करा था. Between the posterior superior iliac spine and the iliac tubercles. पीछे जाएंगे वापस से. Posterior superior iliac spine
एंड इलियक ट्यूबरकल्स पूरा इसको सप्लाई कर रहा है कौन से सुपीरियर क्रेनियल नर्व्स. These pictures are all present in your KLM. तो जब मैं पढ़ाऊँ I would prefer कि आप लोग अपने अपनी KLM खोलें और साथ 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 पढ़ते हैं इसके. So these superficial nerves supply the skin over the iliac crest, posterior superior spine, and the iliac tubercle. Consequently, these nerves are vulnerable to injury when bone is taken for the ileum of grafting. अच्छा, अब बोन ग्राफ्टिंग कब ली जाती है? फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, ठीक है ना, तो बोन ग्राफ्टिंग की जाती है. किस तरह की जाती है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, तो उसके लिए बोन ग्राफ्टिंग की जाती है. बोन ग्राफ्टिंग कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से आपकी ना स्किन निकाली जाती है, थोड़ी सी बोन की ग्राफ्ट अंदर से निकाली जाती है. सो ऑब्वियसली अगर जब यहाँ से हम पोक करेंगे, चीज़ें निकालेंगे थोड़ा सा एक हिस्सा काट के, तो ऑब्वियसली ये नर्व्स भी डैमेज होंगी. सही बात. इसलिए ऑल ऑफ दीज नर्व्स, मिडल, सुपीरियर, these nerves can be damaged during bone grafting. Do you understand? ये एक तो होगी cutaneous nerves. ठीक है. सेकेंड अब आ जाते हैं हम लोग मेजर, जो सबसे आपकी मेजोरिटी है वो है deep gluteal nerves में. अच्छा बच्चों, any point where you do not understand anything you can stop me, okay? So that मैं आपको explain करती हूँ साथ साथ इसके बाद साथ. ठीक है. So the deep gluteal nerves. Now I explained to you, मैंने क्लास ली थी आपकी किस पे? आपके muscle attachments of the gluteal muscles पे. Remember? Posterior thigh पे भी ली थी, जो अटैचमेंट्स करवाई थी. अच्छा, इसी नाम को देख के कौन कौन बता सकता है कौन कौन सा मसल्स के नाम क्या क्या है? मसल्स के नाम याद है ग्लूटियल रीजन के? चलो बच्चों बताओ क्या क्या होते हैं ग्लूटियल रीजन के मसल्स? ग्लूटियस मैक्सिमस, वेरी गुड. पेरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मीडियस, एक्सीलेंट. ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, और इस स्लाइड को देख के बता दो. Gemelli, very good. Inferior and superior gemelli. Tensor fasciolata, excellent. Bicep femoris, कहाँ से आया? Obturator internus, very good. ठीक है, इधर को quadratus femoris, right? Excellent. ठीक है, very good. ठीक है ना, these are all the muscles that you guys अभी जो आप सबने बताए सारे सही बताए. ठीक है, these are all your muscles of the gluteal region, right? तो obviously इसके nerves भी ना इसके साथ साथ नाम के हिसाब से होंगे. ठीक है, very good. Now we have the number one, superior gluteal nerve. ठीक है. Number two, inferior gluteal nerve, sciatic nerve, nerve to quadratus femoris, posterior cutaneous nerve of the thigh, nerve to obturator internus, and the pudendal nerve. ठीक है. All of these nerves are branches of the sacral plexus and leave the pelvis through the greater sciatic foramen. ठीक है. Except for the superior gluteal nerve. They all emerge inferior to the piriformis. ठीक है. इसके अलावा ठीक है ना, ये superior nerve, all of these nerves appear below, inferior to the piriformis. ठीक है. Now अब मैं आपको बताती हूँ piriformis के attachments कौन बताएगा मुझे? piriformis कहाँ से कहाँ तक अटैच होता है? चलो बताओ. शाबाश. मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस. इसकी इंपॉर्टेंस यही थी कि इट सेपरेट्स द ग्रेटर sciatic foramen into two parts. तो आपके कॉन्टेंट्स ऑफ द ग्रेटर sciatic foramen एक ऊपर से जाते हैं और एक नीचे से जाते हैं. ठीक है. piriformis की क्या होगी अटैचमेंट? चलो शाबाश. Origin sacrum, excellent. Sacrum, sacrotuberous ligament, very good. Nida, very good. Zainab, excellent बच्चों. देखो मैं पिक्चर है कि नहीं, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाली तो थी, नहीं है. चलो बताओ बताओ. हाँ, ये तो origin हो गया. Very good. And attaches to the greater trochanter, superior part of the greater trochanter of the femur. Excellent. ठीक है. हम कहाँ आ गए? हाँ चलो ठीक है. तो वेरी गुड. प्रीफॉर्मस कहाँ से अटैच होता है? आपके सेक्रम से निकलता है और जाके अटैच होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे. ठीक है. अब प्रीफॉर्मस के ऊपर कौन सी मसल जाती है? सुपीरियर, इसलिए सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है. और प्रीफॉर्मस के नीचे कौन कौन सी जाएगी? ये सारी. इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, sciatic nerve, nerve to quadratus femoris, posterior cutaneous nerve of the thigh, nerve to obturator internus, and pudendal nerve. Okay. आगे चलो. The superior gluteal nerve runs laterally between the gluteus medius and minimus. ठीक है. With the deep branch of the superior gluteal artery. जो superior gluteal artery नाम है, superior gluteal nerve, दोनों साथ साथ जाते हैं. ठीक है ना. अब मुझे बताओ किस किस को सप्लाई कर रही होंगी superior gluteal nerve? ये अभी लेक्चर में करवाया था आपके gluteus medius and gluteus minimus को. इसलिए why they run between them, उन दोनों के बीच में रन करती है ना, राइट? इसलिए इसको दोनों को सप्लाई करती हैं.
It divides into the superior branch that supplies the gluteus medius. Obviously medius थोड़ा सा बड़ा है तो उसको ऊपर वाला, the superior branch दो हिस्सों में हो जाएगी, ठीक है? ये देखते हैं किधर है superior gluteal nerve. You see this? You see the superior gluteal nerve? ये देखो, इसको हम वापस बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है ना? ये आ रही है आपकी यहाँ से और ये दो हिस्सों में हो रही है, ये एक इधर जा रही है और ये एक नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना? तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डिवाइड्स इनटू कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, ठीक है? Superior branch that supplies the gluteus medius and an inferior branch that continues to pass between the muscles and supplies the medius minimus and the tensor fasciae lata. समझ में आ रही है? तो ये मसल जा रही है जो है ना, ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ये है, ठीक है ना? ये दो ब्रांचेस में हो गई, एक ये वाले ब्रांच में और एक ये वाले ब्रांच में, ठीक है? सो ये जो ब्रांच है इसका सुपीरियर वाला हिस्सा किसको करेगा? सिर्फ ग्लूटियल मीडियस को, ठीक है? और जो इंफीरियर वाला हिस्सा है ये मीडियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लाटा को करेगा. आर वी गुड? तीनों के एक ही नर्व सप्लाई है और तीनों को एक ही काम भी थे, फंक्शन भी मसल्स के एक ही थे. आर वी गुड? ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट नर्व पे जाते हैं. The inferior gluteal nerve, ठीक है ना? Again, inferior gluteal nerve leaves the pelvis through the greater sciatic foramen, inferior to the piriformis, ठीक है? Again, सारे सिवाय superior gluteal nerve के बाकी सारे inferior हैं, ठीक है? Piriformis के नीचे से गुजरते हैं, ठीक है? Piriformis and superficial to the sciatic nerve. हमने क्या कहा है? ये inferior, हम inferior gluteal nerve की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये एक superior gluteal nerve, इसकी बात कर ली हमने, ठीक है? Please follow the arrow बच्चों, ठीक है? अब इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की बात करें, वरना ये बात समझ में नहीं आएगी. इंफीरियर ग्लूटियल नर्व ये रही, ठीक है? आपकी ग्रेटर सैटिक फोरामेन से ही निकल रही है एज वी डिस्कस, ठीक है? पिरिफॉर्मस लगेगा ये सेक्रम से लग के किधर लगेगा? सेक्रम टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ तक. सो इफ देयर इज अटैचमेंट फ्रॉम हियर ऑल द वे हियर, ठीक है? इसके नीचे से निकल रही है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, इधर मसल खत्म हो रहा है, ठीक है? नंबर 1 यहाँ नीचे से निकल रही है, ठीक है? मेन चीज. और दूसरी चीज इसकी क्या बताई हमने कि इट रन्स सुपरफिशियल, मतलब ऊपर से जा रही है sciatic के. ये मोटे वाली जो नर्व है ना, ये सबसे बिगेस्ट चंक, दिस इज योर sciatic नर्व, तो इसके ऊपर से जा रही है inferior gluteal nerve. Again, superior gluteal nerves laterally between the medius and minimus. ये तो superior पे आ गया, ये inferior की बात करें. Inferior gluteal nerve leaves the pelvis through the sciatic foramen, inferior to the piriformis, superficial to the sciatic nerve. It is accompanied by multiple branches of the inferior gluteal artery and vein. तो जिस तरह सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के साथ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जा रही थी, उसी तरह इंफीरियर ग्लूटियल नर्व के साथ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जाएगी. The inferior gluteal nerve also divides into several branches which provide motor innervation to the overlying gluteus maximus. याद आया? Right? आपकी सबसे पहले किसको सप्लाई करती है? जो आपकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, मीडियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लाटा को. Whereas your inferior gluteal motor innervation किसको देती है? Gluteus maximus को, ठीक है? Now we come to the big nerve, ठीक है? The sciatic nerve, ठीक है? The sciatic nerve is the largest nerve in the body and it is the continuation of the main part of the sacral plexus. ये हमने पिक्चर में भी देखा था, right? पिक्चर में सारी देखो नर्व्स छोटी छोटी सी नजर आ रही हैं, राइट? ये मिडिल क्रेनियल नर्व्स जा रही है स्किन को, ये सुपीरियर ऊपर से जा रही हैं, ठीक है? और ये जो बिग सबसे बड़ा चंक जो है, अगर आप देखा जाए पूरा इतना मोटा सा चंक जा रहा है आपके sacral plexus से, दिस इज योर sciatic nerve. Okay, if I'm going too fast, you can stop me, okay? So there's a sciatic nerve, is the largest nerve in the whole body, ठीक है? And it's a continuation of which part? Sacral plexus, ठीक है? इसके branches जो हैं converge at the inferior border of which muscle? Piriformis, right? सारे branches, ये देखो ना, sorry, ये सारे branches, ये 1 2 3, इसके सारे branches एक साथ मिलते हैं और किधर? यहाँ पे मिल रहा है, right? इस point पे, ओहो sorry बच्चों, at this point. And where does your piriformis come from? ये sacrum के border से लग के पूरा जा रहा है greater trochanter तक, right? तो इसके right below it एकदम इसके inferior क्या बन रहा है आपका? Sciatic nerve बन रहा है, ठीक है? So the branches converge at what point? At the inferior border of the piriformis, ठीक है? It is thick, सबसे मोटा nerve अगर देखा भी जाए, सबसे nerve में से सबसे thick है, and it's flattened. It's 2 centimeters wide. The sciatic nerve is most lateral structure emerging through the greater sciatic foramen inferior to the piriformis. अब देखो बच्चों, बार बार लिखा हुआ है inferior border of the piriformis, inferior to the piriformis.
फिर भी जब तुम लोग एग्जाम में आते हो और कुछ भी लिखते हैं ना, जब आपका पॉइंट क्या होता है तो आपने क्या तुम सुपीरियर लिख देते हो. तो प्लीज मेक श्योर इट्स इन्फीरियर टू द पेरिफॉर्मस. एंड अगर ग्रेटर शेटिक फोरामेन के अंदर है तो किस हिस्से में है? सबसे लैटरल, बाहर की तरफ. ठीक है, अगर सेक्रम से चिपका होता तो मीडियल होता ना, टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, सी टुवर्ड्स द मोस्ट लैटरल साइड पर है. ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये आपका पेरिफॉर्मस मसल यहाँ से लेके ग्रेटर फोरामेन तक आ रहा था, उसकी इन्फीरियरली ये जा रही है आपकी. नाइस थिक 2 सेंटीमीटर वाइड भी है, फ्लैट भी है ना. दिस इज योर शेटिक फोरामेन, शेटिक नर्व. ठीक है, मीडियल टू द शेटिक नर्व आर द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड द वेसल्स, द इंटरनल पुडेंडल वेसल्स एंड द पुडेंडल नर्व. ठीक है, ये सब क्या है इसके मीडियली जा रहे हैं. चलो हम ढूंढते हैं, ढूंढो क्या है. पुडेंडल नर्व जरा आ रही है, राइट. ये देखो ये नीचे जा रही है. तो पुडेंडल नर्व क्या है? इसके मीडियली हुई, ये लैटरल होने पे इसके मीडियल आ गई पुडेंडल नर्व. अब पुडेंडल नर्व भी जा रही है, क्या जा रही होगी, और इंटरनल पुडेंडल वेसल्स भी जा रही है. वेसल्स मतलब क्या? वेसल्स का मतलब क्या होता है बताओ? वेसल्स इज व्हाट? बताया अभी मैंने. आर्टरी, वेन्स. वेरी गुड, शाबाश. ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो आपकी क्या जा रही है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जा रही है इसके एकदम मीडियल नीचे की तरफ से. पुडेंडल नर्व वो भी हमने देख लिया, एंड इंटरनल पुडेंडल वेसल्स भी जाएंगी. The sciatic nerve runs inferior-lateral, बार बार बोला जा रहा है, under cover of the gluteus maximus. ठीक है ना. तो हमने क्या डिस्कस किया था? ग्लूटियस मैक्सिमस किधर होता है? सबसे पहले हम जब स्किन डाइसेक्ट करेंगे पेशेंट को, या जो जिसको भी, जब डाइसेक्शन करते हैं तो हम स्किन निकालते हैं. स्किन के बाद क्या आता है? सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आएगा? आपका सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस मसल आएगा. ठीक है ना. जब हम इसको हटाते हैं फिर आपको सारे ग्लूटियल रीजन के मसल्स नजर आते हैं. यू सी दिस? You see this big gluteus maximus? ये है जो पूरा मसल. और जब हम इसको कट करते हैं, रिपीट, sciatic nerve. ओके मेरे बच्चों, अगेन sciatic nerve, it is the largest nerve. ठीक है, अभी वैसे खत्म नहीं हुई थी. ठीक है, and it converges at the piriformis के inferior border पे. It is 2 centimeter wide. ठीक है, and it is the most lateral thing in the greater sciatic foramen. सबसे lateral part पर है. Medial to this nerve is the pudendal nerve. ठीक है, you have your pudendal nerve, internal pudendal arteries, internal pudendal vessels. ठीक है, और this runs inferior lateral under the cover of the gluteus maximus muscle. ठीक है, midway between the greater trochanter and the ischial tuberosity. ठीक है, ये मैं दिखा रही हूँ. अब sciatic nerve जो ना, ये gluteus maximus है, राइट. इसको जब हम हटाएंगे ना, ये हमने इसको यूं उठा के यूं काट दिया तो ये कट गया यहाँ से. ठीक है, इसको हटा दिया. ये देखो सबसे मोटी नर्व नीचे से निकली है. You see this? This is your sciatic nerve. ठीक है, ये सबसे बिग नर्व है. ठीक है, तो इट इज राइट बिलो योर ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे नीचे की तरफ इंफीरियर. एंड हमने क्या किया है कि sciatic nerve is the most lateral nerve in the foramen, greater sciatic foramen, right? So again फिर से पढ़ते हैं. Medial to the sciatic nerve are the inferior gluteal nerve, pudendal nerves, and the internal pudendal vessels. Sciatic nerve runs inferior laterally under the cover of the gluteus maximus. हमने अभी देखा. Midway between the greater trochanter and the ischial tuberosity, right? Greater trochanter किधर होगा? ये सीख रहे हो? This is a greater trochanter. Ischial tuberosity किधर होगा? इधर होगा, है ना. तो इन दोनों के एकदम बीच में, if you were to palpate some of the ischial tuberosity and greater trochanter, आपको पता चाहिए इसके एकदम midline पे क्या जा रही है? आपकी sciatic nerve जा रही है. ठीक है, the nerve rests on the ischium and then passes posterior to the obturator internus, Quadratus femoris, and adductor magnus muscle. Again पढ़ते हैं. The nerve rests on the ischium bone पे rest करती है. ठीक है, it passes पीछे से जाएगी किसके? Obturator internus के, Quadratus femoris के, and adductor magnus के. चलो हम जरा देखें. ठीक है, ये आपकी नर्व जा रही है ना. ग्लूटियस मैक्सिमस हमने जब हटाया तो ये नीचे से नर्व निकली. ठीक है, नर्व किस किस के नीचे बीच में से पास करी? पोस्टीरियरली किस किस के पीछे से? ये इधर क्या आएगा? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस आपका आएगा. ये क्वाड्राटस फेमोरिस भी आ गया आपका. नजर आ रहा है? ये इसके नीचे होते हैं ना योर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. बात समझ में आ रही है? प्लीज. The nerve rests on the ischium and then passes posterior to the obturator internus, Quadratus femoris, and the adductor magnus muscle. Okay, adductor magnus muscle इस तरफ आएगी. Okay. The sciatic nerve is so large that it can receive a named branch of the inferior gluteal artery. मतलब इसकी अपनी होती है blood supply.
ठीक है ना, इतनी मोटी है ये, इतनी बड़ी है और इतनी स्ट्रांग, मतलब देखो पूरे उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है ना, इतनी बड़ी पूरी सेक्रेट प्लेक्सस के लिए जा रही है। तो इसकी क्या है, इसकी अपनी आर्टीरियल सप्लाई है। क्या नाम होगा इसका? आर्टरी टू द शियाटिक नर्व। ऑब्वियसली शियाटिक नर्व को सप्लाई करी तो आर्टरी टू द शियाटिक नर्व। ये किसकी ब्रांच होगी? किसकी ब्रांच होगी? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी के। ऑल्सो पासिंग पोस्टीरियर टू द सुपीरियर इंफीरियर गेमेला। यस इट इज, नजर आ रहा है ना, देखो सुपीरियर क्वाड्रेटस फेमोरिस है यहाँ पे, तो इंफीरियर एंड सुपीरियर गेमेला भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगेन shiatic nerve is so large that it has its own arterial supply। ठीक है, कहाँ से आती है? inferior gluteal artery से आती है, ठीक है। प्लीज, inferior gluteal nerve होता है, inferior gluteal artery, हम inferior gluteal artery अभी ब्लड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। the nerve supplies no structure in the gluteal region। बात समझ में आई? तो ये जो shiatic nerve है ना, इतनी मोटी nerve है, sacral plexus की सबसे मेजर nerve है और नीचे जा रही है, but it does not supply any structure in the gluteal region। तो भाई ये करती क्या है? इतनी बड़ी है, इतनी नीचे तक जा रही है, तो उसका काम ही क्या है? So it supplies the posterior thigh muscle, all the leg and foot muscles, the skin of most of the leg and foot। It also supplies the articular branch to all joints of the lower limb। बात समझ में आई? क्या क्या सप्लाई करेगी? posterior thigh muscle को करेगी, all leg and foot muscles को करेगी, the skin of the leg and foot, ठीक है, and articular branch of all the joints of the lower limb। Are we good? The sciatic nerve is really two nerves। अब ये वापस आते हैं पिक्चर में, ये देख रहे हो, ये नर्व जा रही है ना, sciatic nerve। अब देखो ये बीच में से ये डेंट पड़ जाता है, लाइन आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं। जिस तरह हमने बात की ना, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व दो हिस्सों में हो जाती है, वैसे sciatic nerve भी इतनी चौड़ी है, 2 सेंटीमीटर वाइड है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है, इसकी भी दो हिस्से हो जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से दो हिस्से होंगे? एक होगा कॉमन फिबुलर नर्व एंड एक होगा टिबियल नर्व। क्यों उसका नाम ये रखा गया? ठीक है, नंबर 1 इट सप्लाइज कौन सा? पोस्टीरियर थाई को तो करती है बस, लेग एंड फुट को करती है ज्यादातर। लेग में कौन कौन से बोन होते हैं? दो तो बोन होते हैं, टिबिया होता है और एक फिब्यूला होता है ना, राइट, दो तो बोन है, तो इसलिए इसका नाम sciatic nerve divides into two nerves। क्या क्या nerves होंगी इसकी? the tibial nerve derived from the anterior, आगे वाले डिवीजन से, of the anterior rami, and the common fibular nerve। ये कहाँ से आएगी? अगर टिबिया एंटीरियर से आ रही है तो कॉमन फिब्युलर पोस्टीरियर आएगी, ठीक है, लेकिन दोनों एंटीरियर रेमाई से आ रही हैं, ठीक है, which are loosely bounded together with the same continuous connective sheath। बात समझ में आ रही है? गुड जॉब, ठीक है। मतलब एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की शीट कवरिंग होगी, दोनों उसी के अंदर से जा रही होती है साथ साथ। अच्छा, ये जो पिक्चर है ना, ये मैंने ऐसे दिखाई है कि हमने क्या डिस्कस किया अभी कि दोनों जो एक साथ जा रही होती है, ये दिस इज नॉर्मल है ना। पेरिफॉर्मस की एकदम नीचे जा रही होती है sciatic नर्व, है ना, इंफीरियर होता है, लैटरल बाहर की तरफ होता है, इस्कियम के ऊपर बैठी हुई है देखा जाए तो। इट इज बिटवीन मिड लाइन बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द ischial tuberosity के एकदम मिड लाइन में प्रेजेंट है। दीज आर द फ्यू मेजर पॉइंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट द sciatic nerve। एम आई राइट? इसके दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? टिबियल नर्व, कॉमन फिबुलर नर्व, है ना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पेरिफॉर्मस के नीचे से निकलता है एंड इन दोनों को कंबाइन करते एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, उसको साथ साथ लेके चलती है। बट इन सम केसेस, इन वेरी वेरी फ्यू, लाइक 12% ऑफ केसेस में क्या देखा जाता है कि आपका जो कॉमन फिबुलर नर्व है ना, वो इट इज पासिंग थ्रू द पेरिफॉर्मस। बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है ना। एंड इवन कम केसेस में, लाइक कितने इधर लिखा होगा 0.5%, 0.5% केसेस में क्या हो रहा है, पेरिफॉर्मस के ऊपर से आ रहा है। इनमें मसला ये होता है बच्चों कि क्योंकि ये पेरिफॉर्मस के ऊपर से आ रहे हैं, कुछ बीच में से आ रहे हैं, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, राइट, व्हेन यू पुट एन इंजेक्शन टू अ पर्सन, फॉर एग्जांपल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, यू डू 4 पार्ट्स, राइट, आप 4 पार्ट्स लगाते हैं इसके ग्लूटियल रीजन के, ठीक है। एंड वेयर डू यू डू इट? इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू अवॉइड डैमेजिंग द sciatic nerve, राइट। अब जिन लोगों में ये ऊपर से पेरिफॉर्मस से पास हो रही है, ये बीच में से जा रही है, their chances of having a damaged sciatic nerve is very very high। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, ये बीच में से आ रही है। बात समझ में आ रही है?
वेरी गुड, सुपीरियर आउटर क्वाड्रेंट, वेरी गुड। ओके, आगे जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो हमने अभी कौन कौन सी नर्व्स डिस्कस की हैं, कौन बताएगा? हमने पहले देखो, इसको तो हटाओ यार। डीप ग्लूटियल नर्व्स में क्या क्या हमने सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डिस्कस की है ना, यहाँ से जा रही है, मैं थोड़ा थोड़ा रिव्यू करती हूँ साथ साथ। ठीक है बच्चों, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जा रही है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किधर गई है? ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। इट passes between which two muscles? It passes between, superior gluteal nerve passes between which two muscles? कौन बताएगा? ओहो, superior gluteal nerve passes between which two muscles? टाइपिंग स्पीड तेज करो सब, चलो शाबाश। मीडियस एंड मिनिमस, वेरी गुड, वेरी गुड दानिया। ठीक है ना, अब आ जाते हैं inferior gluteal nerve। inferior gluteal nerve कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये इधर नीचे से आ रही है इधर, है ना, inferior gluteal nerve। और किसको सप्लाई कर रही है? टू योर ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है, सही बात। फिर आते हैं शियाटिक नर्व, हमने डिस्कस किया, राइट। शियाटिक नर्व सबसे बिगर ब्रांच है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है, इसकी एक अपनी ही आर्टीरियल सप्लाई है। क्या नाम होता है आर्टीरियल सप्लाई का? आर्टरी टू द शियाटिक नर्व। किधर से आ रही है ये आर्टरी? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी से आ रही है ये आर्टरी। ठीक है ना, ये जो नर्व है आपकी शियाटिक नर्व, ये सबको सप्लाई करेगी सिवाय ग्लूटियल रीजन को। तो किसको सप्लाई करती है शियाटिक नर्व? लेग को, पीछे से जा रही है ना, पोस्टीरियर लेग को नीचे पीछे से जा रही है, इसको करेगी। वेरी गुड, पोस्टीरियर थाई, वेरी गुड। लेग फुट, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। अब हमारी कौन कौन सी नर्व बचती हैं? नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमोरस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, किस मसल को करेगी? ठीक है, we have the posterior cutaneous nerve of the thigh, nerve to obturator internus and the pudendal nerve. Okay बच्चों, अब मैं आगे बढ़ूं। Any more questions regarding the sciatic nerve, inferior gluteal nerve, superior gluteal nerve? Any queries regarding those? No. Okay, I'm going to go forward. Okay, so nerve to quadratus femoris. ठीक है, nerve to quadratus femoris leaves the pelvis anterior to the sciatic nerve and obturator internus, के आगे से जाएगी। राइट, जाहिर बात है, क्यों आगे से जाएगी? क्योंकि शैटर नर्व तो पीछे होता है क्वाड्रेटस फेमोरस मसल के, है ना, पीछे से जा रहा होता है, तो उसके आगे से जाएगी ये नर्व। इट passes over the posterior surface of the hip joint, है ना। क्या हुआ बच्चे? शैटिक की ब्रांचेस, अभी तो बेटे शैटिक की ब्रांचेस मैंने की नहीं है, बताती हूँ कि सप्लाई मैंने बताई है। इसकी दो ब्रांचेस हैं वैसे तो, जो मैंने बताया दो हैं, ब्रांच भी नहीं है। ये नर्व इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू टू, टिबियल नर्व एंड द कॉमन फिब्युलर नर्व। ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो लेग में और पोस्टीरियर थाई में आती हैं। ठीक है, so now we come to the nerve to quadratus femoris. Nerve to quadratus femoris कहाँ होती है? It passes anterior to the sciatic nerve. ठीक है, it passes over the posterior surface of the hip joint. It supplies the, किसको करेगी? किसको सप्लाई करेगी? ये quadratus femoris है, ठीक है, इसको सप्लाई करिए। और किसको करेगी? Very good, inferior gemmelli, good job Dania। ठीक है, इट सप्लाइज दी आर्टिकुलर ब्रांच टू द हिप जॉइंट, क्योंकि हिप जॉइंट के पोस्टीरियर सरफेस पे पास करेगी तो हिप जॉइंट को सप्लाई देगी। इनर्वेट्स द इंफीरियर gemellus एंड द क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल। ठीक है, ये क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल आपका जा रहा है, चार शेप में होता है ना, इसलिए क्वाड्रेटस फेमोरिस कहते हैं, और ये होता है आपका इंफीरियर gemelli, राइट। तो इसको भी सप्लाई करेगी, ओके, और हिप जॉइंट को भी करेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नर्व क्या है? नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस। The nerve to obturator internus arises from the anterior division, anterior MI L5 to S2। अब जब L5 to S2 आता है ना, तो L5 फिर S1 S2 ये पूरा करेगी नर्व्स। ठीक है, and parallels the course of the pudendal nerve, मतलब कि obturator nerve to obturator internus और pudendal nerve साथ साथ एक साथ parallel चलती हैं। As it passes around the base of the ischial spine, the nerve supplies the superior gemellus. After entering the perineum via the lesser sciatic foramen, the nerve supplies the obturator internus. तो obturator internus nerve कहाँ सप्लाई पास करती है? lesser sciatic foramen से पास करती है। Why is ये कहाँ आएगी आपकी? इसमें क्यों नहीं है? ये रहा, ठीक है, ये आपकी आई नर्व टू obturator internus। हमने क्या कहा था? इट इज गोइंग, pudendal nerve किधर है? ये रही, ये आपके, हाँ ये ना pudendal nerve। अब दोनों को दोनों को एक साथ रख के देखोगे, ठीक है, तो दोनों देखो पैरेलल साथ साथ चल रही हैं,
ये इधर से भी दोनों पैरेलल साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। नर्व टू ऑपरेटर इंटर्नस को देगी, और किसको देगी, इंफीरियर सुपीरियर गेमिलाई को देगी, है ना। और ये पुडेंडल नर्व आपके पेरिनियम में चली जाएगी, ठीक है। सो क्वाड्रेटस फेमोरिस लीव्स द pelvis anterior to the sciatic nerve. It passes over the posterior surface of the hip joint, ठीक है। अब तो हिप जॉइंट के साथ जाती है तो हिप जॉइंट को वो देगी नर्व, ठीक है। और इंफीरियर गेमिलस को और क्वाड्रेटस फेमोरिस को देती है। आ जाते हैं वापस ऑपरेटर इंटर्नस में, किस किस को दे रही है, ऑपरेटर इंटर्नस को देगी ऑब्वियसली, एंड किस नर्व और किस मसल को देती है, सुपीरियर गेमिलस को देती है ना। अब अगेन इसकी क्या डिस्कशन की थी, हम डिस्कशन की थी, इट रन्स पैरेलल टू द पोडेंटल नर्व, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, L5 टू S2 नर्व से होता है, ठीक है। तो जब आपको लिखा जाएगा कोर्स बताएं ऑपरेटर इंटर्नस की, तो हमें क्या करना है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द anterior rami of the L5 to S2. It runs parallel with the pudendal nerve. It passes the base of the ischial spine and supplies superior gemellus and obturator internus. बस यही काफी है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट नर्व पे आते हैं हम लोग। कौन सी नर्व है नेक्स्ट, it is a posterior cutaneous nerve of the thigh, supplies posterior cutaneous again का मतलब होता है स्किन। अच्छा क्या नाम है, सायरा बच्चा, ये जो क्वाड्रस ऑफ फेमोरिस की आप डिस्कस करें बहुत इजी है, इट जस्ट सप्लाइज द क्वाड्रस फेमोरिस, ठीक है। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ दी थाई। कुटेनियस का मतलब क्या होता है, कहाँ चले गए सब, शाबाश, स्किन। पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, अब नाम ही समझ जाना चाहिए। अच्छा ये जो नर्व ना मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी है, ये देखें, ये जा रही है शैटिक नर्व ना, मोटी सी, इसके पीछे है ये, एंड लुक हाउ लॉन्ग दिस इज, गोइंग ऑल द वे डाउन, ठीक है। यू सी हाउ लॉन्ग दिस इज। अच्छा अब ये नर्व्स देख रहे हैं आप लोग की, जो इस पता नहीं लेबल क्यों नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे नर्व्स यहाँ पे, राइट, ये इस पोस्टेरियर नर्व से निकल रही हैं। These are your inferior colonial nerves. याद है inferior colonial nerves हमने जो किए हैं, inferior colonial nerves कहाँ से आते हैं बताएं। colonial मतलब inferior cutaneous, ये देखो, ये देख रहे हो इसमें लेबल किया हुआ है इस पिक्चर में, inferior colonial nerves, ये आपका शैटिक जा रहा था, तो अब ये posterior cutaneous nerve of thigh है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये आपका inferior colonial nerve, so inferior colonial nerve arises from your posterior cutaneous nerve of the thigh, ठीक है। ये एक चीज आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। Its fibers from the anterior division of S2 and S3 supply the skin of the perineum via the perineal branches. Some of the fibers from the posterior division, ठीक है, supply the skin of the inferior part of the buttocks. जाहिर बात है inferior part of the buttocks को करेगी, क्योंकि देखो all the way नीचे जा रही है, ये inferior part of the buttocks है ना, पूरा नीचे तक जा रही है, ठीक है, via the inferior colonial nerves. Other fibers continue inferiorly in branches that supply the skin of the posterior thigh and proximal part of the leg. Unlike most nerves bearing the same cutaneous, the main part of this nerve lies deep to the deep fascia, fascia lata, with only its terminal branches penetrating the subcutaneous tissue for distribution to the skin. ठीक है, अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो आपकी posterior cutaneous nerve है ना, अब cutaneous का मतलब तो skin है, एंड अनलाइक द नेम, मतलब नेम तो इसके हिसाब से तो उसको सबसे सुपरफिशियल होना चाहिए, लेकिन ये जो नर्व है ना, ये आपके डीप फेशिया में रन करती है और छोटे 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 ब्रांचेस देती है, ये देखो ना, टूवर्ड्स द स्किन। अब ये थाई की आउटलाइन नजर आ रही है, एकदम पतली सी ये थाई की आउटलाइन है, और ये देखो कितना डीप है। अब ये जो ब्रांचेस देगी ना, दीज सप्लाई द नर्व्स, otherwise this nerve runs deep into the deep fascia. Again, I'll read it again. Posterior cutaneous nerve of the thigh supplies more skin than any other cutaneous nerve, क्योंकि इतनी लंबी है, ठीक है। Anterior division से आती है S2 S3. It supplies the skin of the perineum, ठीक है। It also supplies the inferior part of the buttocks via the inferior colonial nerve, ठीक है। It is continues inferiorly that supply the skin of the posterior thigh and proximal part of the leg. Unlike most nerves bearing the same cutaneous, the main part of this nerve lies deep to the deep fascia, with only its terminal branches penetrating the subcutaneous tissue. Are we good? ठीक है मैम, all colonial nerves arise from the posterior colonial nerves, और नहीं, सिर्फ inferior आती है बच्चे, सिर्फ inferior colonial nerves आती है, बाकी सारे पिक्चर में दिखाती है वापस। कहाँ गया, ये देखो,
सिर्फ इंफीरियर कोलिनियर नर्व ये आपको देखो पोस्टीरियर ब्रांच आ रही है, पोस्टीरियर कुटेनियस आ रही है। जो आपकी मिडिल है देखो, ये मिडिल कोलिनियर, ये डायरेक्ट आ रही है, ये S1 S2 S3 से ये डायरेक्ट आ रही है। सुपीरियर आपके L1 L2 L3 से डायरेक्ट आ रही है। आर वी गुड? ओके, देन we have the pudendal nerve, the last nerve. ठीक है, again pudendal nerve is the most medial structure to exit the pelvis through the greater sciatic foramen. ठीक है, it descends inferior to the piriformis, posterior lateral to the sacrospinous ligament, and enters the perineum through the lesser sciatic foramen to supply this region. Obturator internus इसके parallel जा रहे हैं ना, obturator internus भी pudendal nerve के साथ साथ जाता है parallel, and at the same time कौन कौन से जाते हैं? Pudendal nerve भी जाता है। ठीक है, तो pudendal nerve supplies no structures in the gluteal region or the posterior thigh. It supplies the perineal region. Are we good? ये nerves आपकी इधर खत्म हुई, main nerves बेटा। ये बहुत अच्छी चार्ट बनी हुई केलम में, उसको देख लेना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसकी कोर्स भी लिखा हुआ है, नेम भी लिखा हुआ है, कंसल्ट दैट। ओके, अब आ जाते हैं आपके आर्टरीज ऑफ द ग्लूटियल रीजन एंड पोस्टीरियर थाई पे। ठीक है, अब आर्टरीज में क्या क्या है, मेन चीजें पढ़नी है। आर्टरीज कहाँ से? आर्टरीज ऑफ द ग्लूटियल रीजन अराइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनल इलियाक आर्टरी। ठीक है, तो पहले आता है आपके कॉमन इलियाक आर्टरी। ठीक है, ये आपके आयोटा जा रहा है सीधे नीचे, देखो एरो से ना, सीधी सीधी नीचे आ रही है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, राइट। इसको कहते हैं कॉमन इलियाक आर्टरी। ठीक है ना, एक राइट कॉमन होती है और एक लेफ्ट कॉमन होती है। द राइट कॉमन लेफ्ट कॉमन दोनों जो है ना डिवाइड होती है, एक होता है इंटरनल इलियाक आर्टरी में और एक हो जाता है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी में। ठीक है, तो जो आपकी ग्लूटियल रीजन है कहाँ से आ रही है? इंटरनल इलियाक आर्टरी से आ रही है। द मेजर ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियाक आर्टरी सप्लाई जो ग्लूटियल रीजन करती हैं कौन कौन सी होंगी? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, inferior gluteal artery and the internal pudendal artery. अब मुझे इनमें से कौन बताएगा कि inferior gluteal artery की एक ब्रांच हम पढ़ चुके हैं? कौन सी ब्रांच पढ़ी हमने inferior gluteal artery की? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, टाइम जा रहा है जल्दी से। inferior gluteal artery की कौन सी ब्रांच हम पढ़ चुके हैं? Very good, artery to the sciatic nerve. Excellent बच्चों, शाबाश, सुन रहे हो तुम लोग? Good. ये देख रहे हो, ये आपकी कॉमन इलियाक आर्टरी, वेरी गुड। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अच्छा, ये जो है ना, ये पिक्चर जो है ना, ये बहुत जबरदस्त आप लोग के ना यहाँ पे पड़ा हुआ भी है, इसकी मॉडल ना, इंशाल्लाह तो व्हेन यू गाइस कम यू गाइस विल सी इट। और कॉमन इलियाक आर्टरी आती है, ये होती है इन एक्सटर्नल, बाहर की तरफ जो निकल गई, देखो बॉडी से, ये देखो ना, ये बॉडी से बाहर एक्सटर्नल, ये दिखाने के लिए इसमें है, एंड इंटरनल अंदर की तरफ चली गई आपके, नजर आई? एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी मेन आर्टरीज पढ़ी हैं? ये देखो ग्लूटियल रीजन की, ये इंटरनल इलियाक से क्या आ रहा है? ये आ रहा है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी आपकी यहाँ पे, और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो नीचे जा रही है। एंड तीसरी कौन सी थी जो मेन थी? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। आर वी गुड? ठीक है, तो आपकी इधर आई कॉमन, इंटरनल, इंटरनल से सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। चलो आगे चल के पढ़ते हैं क्या क्या है। The posterior compartment of the thigh has no major arteries. ठीक है ना, तो हमने ग्लूटियल रीजन की कर लिया। अब पोस्टीरियर थाई की क्या है? कोई मेजर आर्टरी नहीं है, एक्सक्लूसिवली नहीं है उस कंपार्टमेंट के लिए। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम मेजर सोर्सेज। अब कौन कौन सी सोर्सेज की? थाई की कौन कौन सी है? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी करेगी, चाहे तो नीचे तक जा रही है वो। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, अब ये फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है, इसलिए इसको मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स मतलब एनीथिंग दैट कवर्स, सर्कल करके आपको एक दूसरे को कनेक्ट हो जाए, इसलिए सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, परफोरेटिंग आर्टरीज एंड पॉप्लेटल आर्टरी, बच्चे याद करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्टीरियर थाई को कौन कौन सी सप्लाई करती है? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, दिखते हैं आगे ये रहा। ठीक है, अभी हम थाई पे आगे नीचे। ठीक है, तो आपके कौन कौन सी कर रही हैं यहाँ पे आगे? आपके ग्लूटियल रीजन को कौन कौन सी करी? तीन मेजर, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये इंफीरियर ग्लूटियल नीचे जा रही है इधर, एंड द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ये इसके अंदर पुडेंडल एरिया में पेरिनियल रीजन में कर रही है। अब इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी थोड़ी थोड़ी नीचे जाती है एंड इट सप्लाइज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ठीक है, तो आपकी होगी इंटरनल ग्लूटियल आर्टरी एक ब्रांच हुई। ये देख रहे हो ना, मीडियल सर्कमफ्लेक्स यूं गोल बन के, लैटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स पीछे से है तो इसलिए पोस्टीरियर साइड पे आती है। आपकी नंबर 1 क्या है? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और क्या है? ये परफोरेटिंग ब्रांच, देखो पीछे से पकड़ पकड़ के आ रही है परफोरेटिंग ब्रांच। एंड ओवर हियर दिस इज योर पॉप्लेटल आर्टरी। हाउ डू आई नो दिस? कि फीमोरल आर्टरी देखो इतने मजे से पास हो रही है बिटवीन द एडक्टर हाइएटस। As soon as it passes behind the abductor hiatus, it turns into
popliteal artery. कैसे पता ये posterior femur है? Number 1, ये linea aspera नजर आ रहा है आपको बच्चों? ये linea aspera नजर आ रहा है? Yes बेटा. Yes, perforating arteries are a branch of the profunda femoris, and profunda femoris is a branch of the femoral artery. Are we good? ठीक है. So where do you have this adductor hiatus? यहाँ पर है. You see this? इसके एकदम पीछे आएगी. ये posterior femur कैसे पता चला? Number 1, iliac crest नजर आ रहा है इतना बड़ा सा. Number 2, ये linea aspera. Are we good? चलो. अब थोड़ा डिटेल जाते हैं. जो 3 आर्टरी कौन सी थी ग्लूटियल रीजन की? सुपीरियर, मिड, इंफीरियर एंड internal potential. So superior gluteal artery is the largest branch of the internal iliac artery. Okay, good. ठीक है. It passes posterior between the lumbosacral trunk and the S1 nerve. चलो अब आगे आपके internal iliac की superior gluteal artery. It passes posterior to the, हमने क्या पढ़ी? एक तो largest है ये वाली, पीछे जाएगी, largest है. Passes posterior between the lumbosacral trunk and the S1 nerve. ये देखो ना, आपकी lumbosacral trunk यहाँ पे आई और ये आपके S1 नर्व है, तो इन दोनों के बीच में से जा रही है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. डू यू सी दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी यू अंडरस्टैंड दिस. ये इन कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी गिव्स ब्रांच टू सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी. सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी किसके बीच में से जाती है? आपके लंबोसेक्रल ट्रंक, इतनी मोटी सी आ रही है, एंड S1 के एकदम बीच में से जा रही है. आर वी गुड? एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. देखो कितनी सिंपल है. चलो अब inferior gluteal artery arises from the obviously internal iliac artery, है ना? It passes posteriorly through the, अब ये देखते हैं, parietal pelvic fascia between S1, S2 या S3, S4. हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है, देखो यहाँ से जा रही है. ठीक है, और बहुत डीपर है. अब S1, S2 के बीच में हो सकती है, कभी कभार इसके नीचे भी जाती है, या S3, S4 के बीच में से भी जा रही है. ठीक है, ओके. ये inferior gluteal artery होगी, नर्व होगी. ओके, आर्टरी. ओके, अब आ जाते हैं थर्ड जो ग्लूटियल रीजन की क्या है? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी. इंटरनल पोडेंडल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड इट लाइज एंटीरियर टू द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी. चलो फिर से देखते हैं. ये आपका आया इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी के एकदम सामने. देखते हैं क्या है? ये लो, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी. इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एकदम एंटीरियरली है, internal potential artery, and it is still a branch of your internal iliac artery. Are we good? सब साथ हैं, सोए तो नहीं? चलो गुड, शुक्र है. ठीक है, अब परफोरेटिंग आर्टरी. परफोरेटिंग आर्टरी किसको करती है? हमने पोस्टीरियर थाई के कौन से थे? 4 थे, है ना? एक तो हमने डिस्कस कर लिया, इंटरनल इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी. दूसरा है परफोरेटिंग आर्टरी. It is 4 perforating arteries. ठीक है, और जैसे मैंने बताया था, where does it originate from? तुमने खुद ही guess कर लिया था, profunda femoris artery. शाबाश, because you saw it in the picture. This is why anatomy में ना बेटा pictures, this is why it's important. 3 to 4, very good. ठीक है, और ये profunda femoris से आ रही है. ठीक है, 3 arising in the anterior compartment and the 4th is the terminal branch. ठीक है, of the profunda femoris. मतलब कि profunda femoris सबकी खत्म ही as a perforating हो जाती है. देखो ये profunda femoris जा रही है, इसने एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, and this is the 4th perforating branch. लेकिन ये profunda femoris इधर खत्म भी हो गई, तो ये terminal branch है profunda femoris की. ठीक है, the perforating arteries are large vessels unusual in the limbs for the transverse intercompartmental course. मतलब कि जब आप बीच में से इसको जब transversely काटते हो ना, देखोगे pieces में, तो थोड़े से बीच बीच में से नजर आएंगे. Okay, yes बेटा, profunda femoris is a branch of femoral artery. Excellent. अब आ जाते हैं veins of the gluteal and posterior region of the thigh. जिस तरह आर्टरीज थी मेन ग्लूटियल रीजन की 3 है, ठीक है, और पोस्टीरियर थाई की 4 थी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, परफोरेटिंग आर्टरी, है ना, 4 थी, पॉप्लिटल आर्टरी. उस तरह वेन्स अब होंगी ग्लूटियल एंड पोस्टीरियर थाई. पहले ग्लूटियल वेन्स पढ़ते हैं. ठीक है, ग्लूटियल वेन्स कहाँ से आ रही है? दे आर ट्रिब्यूटरीज. जिस तरह हम आर्टरी की ब्रांचेस कहते हैं ना, हम वेन्स की क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. ठीक है, सो द ग्लूटियल वेन्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंटरनल इलियक वेन. ऑब्वियसली इंटरनल इलियक आर्टरी से सारी सप्लाई है, तो वेनस कहाँ से आएगी? इंटरनल इलियक वेन से आएगी. दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन. सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल वेन्स अकम्पनी द कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरीज. मतलब सब साथ साथ जा रही हैं थ्रू द ग्रेटर शायरिक फोरामेन. ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर टू द पिरिफॉर्मस. अब सुपीरियर ग्लूटियल नर्व याद है?
और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी दोनों पिरिफॉर्मस मसल के ऊपर से जा रही थी, इसलिए सुपीरियर ग्लूटियल वेन भी स्टैटिक फोरामेन में पिरिफॉर्मस से ऊपर से जाएगी, और इंफीरियर से क्या जाएगी, इंफीरियर ग्लूटियल वेन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दे कम्युनिकेट विद tributaries of the femoral vein, thereby providing alternative routes for the blood to return from the lower limb. ये तस्वीर देख लो, ये रही। ठीक है, इसको देख के परेशान नहीं होना, ये ग्रीन ग्रीन चीज है ना, अभी लिम्फ नोड्स, इनको अभी तो आप इग्नोर करें, ठीक है ना। तो आपका आ रहा है इंफीरियर वेन के जो मेन ब्रांच है, राइट। ये आपका राइट कॉमन इलियक। आगे राइट कॉमन इलियक वेन किस में डिवाइड हो रही है, राइट इंटरनल एंड राइट एक्सटर्नल, है ना। तो अब हम क्या डिस्कस करें, ग्लूटियल रीजन में इंटरनल वाला डिस्कस करते हैं। इंटरनल क्या है, ये पीरिफॉर्मस मसल सेक्रम से देखो निकल रही है, अटैचमेंट जाएगी ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, और ये मोटा सा आपका ग्रेटर शैटिक फोरामेन नजर आ रहा है। अगर इस पे मैं पिन लगाऊं, पूछूं लेबल दिस, तो क्योंकि ये पीरिफॉर्मस के ऊपर है और ग्रेटर शैटिक फोरामेन के अंदर है, तो क्या होगा, सुपीरियर ग्लूटियल वेन। इसी तरह इसके साथ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी जारी होती है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके नीचे से जब जा रही है, नीचे से ये क्या होगी, इंफीरियर ग्लूटियल वेन होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इंफीरियर ग्लूटियल वेन होगी, और जो बाहर से ही निकल गई वो है कि इंटरनल पोटेंडल वेन। बातें समझ में आ रही है ना बच्चे? चलो फिर से पढ़ते हैं, नहीं ये वाला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द इंटरनल पोटेंडल वेन accompanies the internal pudendal arteries and joined from the single vein that enters the internal iliac vein. The veins drain blood from the external genitalia or the pudendum, मतलब के बाहर से external genitalia से करते हैं। Perforating veins accompany the arteries as the same of the thigh, जैसे पुष्टिका में थाई में जो होती है ना, बिल्कुल साथ साथ veins भी होती है इसकी perforating artery। Perforating arteries किस में ड्रेन होती है, profunda femoral artery में होती है। तो profunda femoral vein किस में होगी, perforating veins में। बात समझ में आ रही है बच्चों? The perforating veins, like the arteries, usually communicate inferiorly with the palpebral vein and superiorly with the inferior gluteal vein. Are we good? ठीक है। Now we have the lymph. Lymph कौन कौन सी हैं इनकी, आपने दो मेन याद करने हैं, सुपीरियर ग्लूटियल lymph nodes हैं और एक inferior gluteal lymph nodes हैं, ठीक है। Internal, external, common iliac lymph nodes एंड लैटरल लिम्फ नोड्स, ये सब इसमें जाएगा। ऑर्डर ये है, सुपीरियर इंफीरियर में आएंगे, फिर ये दोनों किस में जाएंगे, इंटरनल में और एक्सटर्नल में, इंटरनल से एक्सटर्नल एंड कॉमन इलियक में, कॉमन इलियक से किधर जाएगा, लंबर में, ठीक है। ये ऑर्डर में सुपीरियर इंफीरियर दोनों मिलके इंटरनल में जाएंगे, इंटरनल से एक्सटर्नल दोनों मिलके कॉमन इलियक में जाएंगे, और कॉमन इलियक किस में ड्रेन होगा, लैटरल लंबर में होगा। देखो ऊपर से जाते हैं, ये फीमोरल वेन जा रही है आपकी, ठीक है ना। चले जाते हैं इधर, सुपीरियर ग्लूटियल वेन, ये लिम्फ नोड्स हैं, साथ साथ इंटरनल लिम्फ नोड्स हैं, ये देखो एरो जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, ये दोनों किस लिम्फ नोड्स में जा रहे हैं, आपके राइट कॉमन इलियक लिम्फ नोड्स में जा रहे हैं। राइट कॉमन इलियक लिम्फ नोड्स किस में जा रहे हैं, लंबर लिम्फ नोड्स में जा रहे हैं। Lymph from the superficial tissues of the gluteal and thigh region enter the superficial inguinal lymph nodes, ठीक है। तो हमने ये डीप की डिस्कशन की थी ना, सुपरफिशियल किस में होगी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में होगी, और सुपरफिशियल इधर किधर जाएंगी, एक्सटर्नल इलियक में जाएंगी। चलो क्वेश्चंस बताओ, कौन आंसर करेगा, जल्दी 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 जल्दी, देखो मैं किसको आता है किसको नहीं आता। कहाँ गए सब, जल्दी 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 जल्दी, मेरे बताओ। वेरी गुड, अच्छा। टेंसर फेशियलाटा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, माशाल्लाह सबको आता है, चलो शाबाश। अब ये बताओ, शैटिक नर्व, अच्छा ये जो पोस्टीरियर फीमोरल कुटेनियस नर्व का मतलब क्या है, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये वो है जो लंबी सी दोनों साथ साथ नहीं जाती। माशाल्लाह, गुड जॉब, बात सुन रहे हो तुम लोग, नाइस। चलो ए, वेरी गुड, इसका आंसर ए है, ठीक है। लाइज डीप टू दी पोस्टीरियर फीमोरल कुटेनियस नर्व, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये बताओ, व्हिच इज द ऑड वन। चलो मैं ये देखती हूँ, ये तुम लोग आंसर कर पाते हो नहीं कर पाते, बताओ। और क्यों, को बता सकते हैं, सारी हैं लेकिन एक ग्लूटियल रीजन की है, एक लोअर
वेरी गुड, गुड जॉब। चलो inferior gluteal nerve supplies बताओ। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, सबका आंसर यही है, ग्लूटियस मैक्सिमस। वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस बच्चों? बात समझ में आई है? दोनों आर्टरीज एंड आपके जो मसल्स हैं ना, जो आर्टरीज और वो हैं, दोनों जो है इक्वली अवेलेबल हैं एज अ गुड ब्यूटीफुल चार्ट ऑन योर इन योर KLM। और प्लीज लेटर्स खोला करो बेटा, एटलस खोला करो, पिक्चर्स देख देख के रीड किया करो, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ बिल्कुल उसी तरह रीड किया करो, ताकि आपको याद रहे, वरना एनाटॉमी बहुत टफ सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि इसके डिफरेंट ऐसे होते हैं, हिस्टोलॉजी भी पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ना है, ग्रॉस भी पढ़ना है। ग्रॉस की मजे की बात ये है कि आप देख सकते हो उसको, इट्स इजियर फॉर यू। एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? चलो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओके, हाफिज।